Hello students, welcome to your 6th maths class. I am Jyoti Sachdeva from SGJ DAV School Haripura. Today we are doing our chapter 16 statics worksheet number 1. In this worksheet number 1, graphs are given. We have to read this graph and give the answer of these simple questions. Let's see. Academic years are given on this axis and number of students are given in this axis. There are two axes, one is x-axis, one is y-axis. That horizontal line, जैसे हमारी नोटबुक्स में लाइन आती है, that are known as a horizontal line. This is x-axis and this vertical line is the y-axis. Two axes होते हैं, x-axis that is horizontal line and vertical line that is the y-axis. Now the questions are given. Bar graph of number of students of class 6 of a school during academic year 2000 to 2001 to 2004 to 5. Academic years के बताए हुए हैं students. First question है, how many students were there in the year 2001 and 2? 2001 and 2 में कितने number of students हैं? तो number of student 2001 year में कितने बन रहे हैं? 250. Then we will write their answer is 250. Second is, how many students were there in the year 2003 and 4? 1, 2, 2, 3 and 3, 4. 3, 4 ये फोर्थ वाला है, तो इसका आंसर हमारे पास कहाँ तक पहुँच रहा है? 450. तो सेकेंड वन द आंसर इज 450. थर्ड क्वेश्चन इज, नेम द ईयर इन विच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर द सेम. कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम हो, तो हमें ये वाला दिख रहा है, वो ईयर कौन सा है? 2001, 2 and 2, 3. And the last, in which year the number of students was maximum. Maximum is ये जो रेक्टेंगल्स बनी हुई हैं, वो रेक्टेंगल्स में मैक्सिमम लाइन ये वाली जा रही है, तो वो कौन सा ईयर है? 2004 and 5. And also how many were there in this year. और कितने हैं इसमें? वो सबसे टॉप वाली लाइन कहाँ तक सीधी जा रही है? दिस इज नंबर 500. And the answer of this fourth question is 500. Now let's see the second sum. Again there is a bar graph. Observe the bar graph showing the marks obtained by the Neha in different subjects in her annual examination. अब यहाँ क्या है? सोशल साइंस, हिंदी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स गिवन है और यहाँ उसके क्या है? मार्क्स ऑब्टेन बाय नेहा. And their first question is, what information is given by the bar graph? अब bar graph में information कौन सी दे रहे हैं? The bar graph showing the marks obtained by Neha. तो क्या लिख रहे हैं कि bar graph shows the marks obtained by Neha in different subjects in her annual examination. कि annual examination में अलग अलग subjects में उसके कितने marks आए हैं. Second question is, in which subject did Neha score maximum marks? किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम? तो जो सबसे बड़ी रेक्टेंगल है वो कौन सी है? मैथमेटिक्स की. थर्ड, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही स्कोर इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स. हिंदी वाली लाइन कहाँ तक आ रही है? 60 तक, और मैथमेटिक्स वाली लाइन 90 तक. या आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कहाँ तक आ रही है. नेक्स्ट, इन विच सब्जेक्ट डिड नेहा स्कोर द सेम नंबर ऑफ मार्क्स. सेम मार्क्स इसमें आ रहे हैं, ये दोनों सेम है, हिंदी एंड जनरल साइंस में. द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ नेहा इन 5 सब्जेक्ट्स. कि नेहा का 5 सब्जेक्ट्स का टोटल स्कोर क्या बनता है? जैसे इंग्लिश में 70, मैथ्स में 90, जनरल साइंस एंड हिंदी में 60, एसएसटी में 50. तो इन सभी का हम क्या करेंगे? टोटल एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन. Now these are the answer of these question. We add this and the total marks is 330. Clear? Now let's start the worksheet number 2. Worksheet number 2 में क्या है? The following table show the number of students of different clubs in a school. स्कूल के अंदर क्लब होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, कितने कितने हैं. प्रिपेयर ए बार ग्राफ. बार ग्राफ देखो, रेक्टेंगल्स के बीच में हमें गैप देना है, वो भी गैप क्या है? इक्वल. उसको हम कहते हैं बार ग्राफ. And now unit length is also given. Mathematics, language, science, dance, music, art and craft, music,
एंड कंप्यूटर, ये डिफरेंट डिफरेंट क्लब दिए हुए हैं, इसका हमने बनाना है। तो फॉर दिस फर्स्टली वी विल टेक द एक्सिस। आपके इस तरह की ग्राफ की नोटबुक होगी, वो आपने बाजार से परचेज करनी है, जिसके अंदर इस तरह के बॉक्सेस बने होंगे। तो ये आपने उस पे एक्सिस लेनी है। सबसे पहले जो हॉरिजेंटल लाइन है वो एक्स एक्सिस, तो उसमें यहाँ एक्स लिखना है और यहाँ पर ओ, और जो वर्टिकल लाइन है जितनी भी आपने ड्रॉ करनी है, और यहाँ आपने क्या लगाना है वाई, और आपने इसको पेंसिल से बनाना है। और मैं यहाँ पेंसिल से बनाऊंगी तो आपको लाइट लाइट दिखेगा नहीं, इसलिए मैं स्केच से बना रही हूँ, बट यू हैव टू ड्रॉ इट विद द पेंसिल। नेक्स्ट क्या है आपने करना है, उसमें आपको यहाँ क्लब्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर जब भी दिए होंगे वो हमने हमेशा वाई एक्सिस पर लेने होते हैं, और वो किसके अकॉर्डिंग लेने। अब यहाँ यूनिट लेंथ गिवन है कि हमारे पास जो एक बॉक्स है इस तरह, उसके अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस बने हुए हैं, तो हम इस एक बॉक्स को 1 यूनिट कहते हैं। उन्होंने क्या कह दिया कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 20 स्टूडेंट्स के। इट मीन्स जो हम यहां पर लेंगे वो किसके बराबर आएगा, 20। अब आगे फिर वो एक यूनिट किसके बराबर, 20, तो 20 और 20 कितने हो गए, 40। फिर 20 और कितने हो गए, 60। इस तरह मार्क करना है और हमने निशान लगाना है। अब यहाँ कितने निशान लगाने हैं, तो मैक्सिमम हमारे पास कितना है, 180। तो हमने 180 तक इस तरह मार्क करने हैं, और नीचे इसमें हमने यहां तक अलग अलग गैप छोड़ के यहां पर इस तरह मार्क करने हैं। हमने इस तरह इस पे मार्क कर लेना है, और उसके बाद हमने अपनी रेक्टेंगल्स ड्रॉ करनी शुरू करनी है। जैसे फर्स्ट क्या है, मैथमेटिक्स क्लब कहाँ तक का है, 150 तक। तो सबसे पहले हमने इस वर्टिकल लाइन के साथ हमने 150 तक एक लाइन लेनी है। अब 150 हमारा आएगा कहाँ पर, 150 तो हमारे पास है ही नहीं, तो 140 और 160 के बीच में आता है, तो उसके बीच में एक लाइट सी लाइन होगी, वो हमारी क्या आ जाएगी, 50 की। अब यूनिट का हमें पता कैसे चलता है कि 1 यूनिट जो लिया है उसके अंदर हमारे पास कितने हैं, 10 बॉक्स हैं। मींस हमारे 10 बॉक्स किसके बराबर हो गए, 20 के। तो यूनिट मेथड लगाएंगे तो 1 बॉक्स किसके बराबर आ जाएगा, 20/10 के। इट मींस जो स्मॉल 1 बॉक्स है इसके अंदर, ये देखो या इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, तो स्मॉल 1 बॉक्स किसके बराबर है, 2 के इक्वल। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, उस तरह की 150 तक की एक लाइन लेनी है। एक तरफ ली तो दूसरी तरफ भी हमने वहां पर इसी तरह है लाइन, एक रेक्टेंगल बनानी है हमने इस तरह, और उसको ऊपर से इस तरह हमने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, मैथमेटिक्स क्लब, और इसके बीच में हम लिख देंगे मैथमेटिक्स क्लब। नेक्स्ट हमारी कौन सी है, लैंग्वेज क्लब। तो हम 1 गैप छोड़कर लैंग्वेज क्लब का इसी तरह रेक्टेंगल। उसी तरह नेक्स्ट हमारी साइंस क्लब की है, तो 1 गैप छोड़ के साइंस क्लब का। इस तरह हम सारा ये रेक्टेंगल बनाएंगे। इस तरह हमने क्या करने हैं, सारे के सारे रेक्टेंगल्स बना लेने हैं। जैसे साइंस क्लब 140 तक गया, डांस क्लब 180 तक, आर्ट एंड क्राफ्ट गया 100 तक, और ये कंप्यूटर क्लब 120 तक। यहाँ हमने नीचे क्लब्स लिए हैं, तो यहाँ नीचे हमने क्लब्स लिखने हैं, और यहाँ हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो चीज़ लिखनी है। पहले एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, फिर यहाँ क्लब्स का गैप डाला, नंबर्स का 1 यूनिट किसके बराबर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लब, उसके अकॉर्डिंग ये रेक्टेंगल। एक जितनी चौड़ी रेक्टेंगल है उतना ही बीच में गैप देना है। सेम वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लैंग्वेजेस और न्यूज़पेपर से, कि किस लैंग्वेज के कितने न्यूज़पेपर सॉल्व होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने नीचे लैंग्वेजेस लिए। नंबर मैंने आपको पहले ही बताया है कि नंबर हमने वर्टिकल लाइन पर लेने हैं। उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश के न्यूज़पेपर कितने हैं, 140, हिंदी के 1600, ये 1400, ये 1600, पंजाबी के 400, तमिल के 800, उर्दू के 200, और बंगाली के कितने हैं 600। ये इस तरह इसकी रेक्टेंगल्स बनाई। यहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0 है, यहाँ लैंग्वेज है, यहाँ नंबर। यहाँ ये ध्यान रखना है कि एक तो गैप बिल्कुल बराबर चलना है, कि जितने 10 बॉक्सेस हमने 100 लिए हैं, तो यहाँ नेक्स्ट 10 बॉक्सेस अगले 100, मीन्स अगली काउंटिंग क्या आ जाएगी, 200, 300, 400 उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, उसके अंदर हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें दोनों तरफ ही नंबर्स हैं।
और मैंने कहा है कि नंबर्स आपको वर्टिकल एक्सिस पर लेने हैं, बट यहाँ ये देखो कि ये नंबर्स ऑफ मेंबर जो हैं दोनों में डिफरेंस इक्वल है कि 1 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर, और ये नंबर ऑफ फैमिलीज अलग अलग है। तो जो ये नंबर ऑफ फैमिलीज हैं वो हमने क्या लेनी है, वाई एक्सिस पर, मीन्स जो वर्टिकल हमारा एक्सिस है, और नंबर ऑफ मेंबर्स हमने क्या लेने हैं, एक्स एक्सिस पर। इस तरह हमने लिए। फिर 1 मेंबर वाले 20, 2 मेंबर वाले 100, 3 मेंबर वाले 120, 4 मेंबर वाले 110, 5 वाले 80। इस तरह हमने जो हमें गिवन है सीक्वेंस में, हमने उसके अकॉर्डिंग ही ड्रा करना है, हमने इसका कोई भी सीक्वेंस चेंज नहीं करना। नाउ योर चैप्टर डाटा हैंडलिंग और स्टैटिक्स चैप्टर है, डाटा हैंडलिंग भी कहते हैं इसको। दिस चैप्टर इज योर कंप्लीटेड। थैंक यू।